from the basic because I am associate professor at the Department of Bioinformatics and Biotechnology, Government College University, फैसलाबाद। ये डिस्टॉर्शन आ रही है काफी, मेरा ख्याल है ये सबके ना माइक आप बंद करवा दीजिए। जी सर, मैं ये जोन से थैंक यू। Today lecture is computer aided drug designing. I am Dr. Usman Ali Faq, Associate Professor, Department of Bioinformatics and Biotechnology, Government College University, Faisalabad. I start from the basic. What is drug? Drug is actually any defined composition which has pharmacological effect is called drug. These are regulated by Food and Drug Administration, FDA. आई स्टार्ट फ्रॉम गॉड फॉर मैसी के कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी जिस तरह की उनकी शेप थी वैसे ही उनमें डिस्कवरी हो गई। carrots look like eyes, iris of the eyes, and in later stages it is identified that it is good for vision because carrot has beta carotene which can reduce the cataract, macular degeneration, our age-related sight problem in the human being. Similar, walnut look like the brain, and in later stages, it is identified that it contains omega-3 fatty acid, and it is good for dementia, Alzheimer diseases, and one study showed that walnut extract broke down the protein-based plaques associated with the Alzheimer diseases. Similarly, tomato look like has four chambers like four chambers of our heart, and in later stages, lycopene was discovered, uh, and it control lycopene lowering the control the coronary heart diseases, and it is good for reducing the low density lipoprotein in cholesterol in the body, and it uh, has a four chamber like four chamber of our heart. Similarly, grapes looks like alveoli of the lungs, and it is good for lungs and related diseases of the lungs. And in later stages, it is identified that it contains a chemical proanthocyanidine, which can reduce the chances of asthma. Cheese look like bones, and it is good for reducing the osteoporosis in the woman, and क्योंकि इसकी shape just like bones है तो ये good for the bones. Similarly, I give another examples. Ginger है, ये look like stomach and good for aiding digestion, and it also good for remedy of motion sickness. And in one study, it is also reported that it is good for bowel tumors. Banana look like smile, and it's good for depression because its shape look like the smiley face of the smiley face, and in later stages it has been identified that it contains a tryptophan which converted into the serotonin, and serotonin is used for antidepressant and antidepressant. Another, I will tell you point about serendipity. कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बाय चांस डिस्कवर हो गई, यानी कि जैसे कि मैंने एग्जांपल इधर ऐड की है पेंसिलिन की।
पेंसिलिन was discovered बाय चांस डिस्कवरी हुई है। फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसमें आइडेंटिफाइड दैट कुछ फंगस आ गई तो उससे पेंसिलिन की डिस्कवरी हुई। तो ये बाय चांस डिस्कवरी थी। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि बाय चांस डिस्कवर हो गई, उनमें वन एग्जांपल है पेंसिलिन। दिस इज कॉल्ड सिरेंडिपिटी। और कुछ ऐसा है कि वन ड्रग यूज फॉर वन इंडिकेशन एंड देन दे यूज फॉर अनदर इंडिकेशन, लाइक एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज वाज डिस्कवर्ड बाय चांस। इसी तरह और बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि जिनमें सेकंड जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो बाय चांस डिस्कवर्ड हुई। यानी कि ड्रग यूज फॉर वन इंडिकेशन एंड देन दे यूज फॉर अनदर इंडिकेशन। One example is tamoxifen. Tamoxifen is used for bulk control, and now it's also controlled for cancer treatment, breast cancer treatment. Interferon alpha used for hairy cell leukemia, now used for hepatitis C, B treatment. What is the procedure of all procedure of drug discovery and development? First, we identify the disease and then isolate a protein involved in the disease. तो हम जब भी देखते हैं तो हम अपनी सोसाइटी में पहले डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हमें 2 से 5 साल लग जाते हैं कि उसमें से प्रोटीन आइसोलेट करते हैं कि जो कॉज करती है डिजीज के लिए। अनदर देन फिर हम उसके अगेंस्ट स्क्रीन करते हैं लाइब्रेरीज टू फाइंड ड्रग्स अगेंस्ट जो कि टारगेट करती है टू स्पेसिफिक प्रोटीन। और फिर हम माउस मॉडल करते हैं एंड देन फॉर्मुलेशन करते हैं एंड फॉर्मुलेशन के बाद ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देन एफडीए अप्रूवल। तो टोटल प्रोसीजर 20 से 30 साल लग जाता है टू डेवलप ड्रग किसी भी टारगेट के अगेंस्ट। तो कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं जिनको हम चूज करके ड्रग बना सकते हैं? रिसेप्टर्स हो सकते हैं, 45% टारगेट आर रिसेप्टर्स एंड 28% टारगेट आर एंजाइम्स। और कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं 2%, आयन चैनल्स 5%, डीएनए इन केस ऑफ कैंसर 2%। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो प्रोटीन है, लाइक रिसेप्टर्स एंड एंजाइम, जिनको हम टारगेट करते हैं टू डेवलप सम ड्रग्स। मॉडर्न मेथड ऑफ ड्रग डिस्कवरी क्या है? नाउ वी कंप्यूटर एडेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग की वजह से ये जो पीरियड है ये रिड्यूस हो गया है 5 to 10 years। तो अब मॉडर्न मेथड ऑफ ड्रग डिस्कवरी है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, प्री क्लिनिकल फेज एंड ड्रग डिस्कवरी। तो जो ओल्ड मेथड है उसकी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग की वजह से ये टाइम रिड्यूस हो गया है टू 5 to 10 या 10 to 15 years। सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हम क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी डेवलप हो गई हैं, जैसे कि जिनोमिक्स, माइक्रो अरे है, जिससे हम बहुत सारे जीन्स का डाटा एट ए टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जिनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स टेक्निक की वजह से हम जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं और इजीली टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन के लिए हम जिस तरह siRNA है या क्रिस्पर कैस है, दीज टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड टू वैलिडेट द टारगेट। तो हम टारगेट को वैलिडेट कर देते हैं लैब में। लीड ऑप्टिमाइजेशन, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, फ्रैगमेंट बेस्ड स्क्रीनिंग, कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरीज वो स्क्रीन करके हम लीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए medicinal chemistry driven optimization, X-ray crystallography, quantitative structure activity relationship, ADMET profiling, absorption, distribution, metabolism and excretion profiling करते हैं।
प्री क्लिनिकल फेज में फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, एक्यूट और सब एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन एनिमल्स हम करते हैं, एंड देन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इस तरह हम 10 to 15 या 5 to 10 ईयर्स में ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं विद these latest technology. Now come into the point कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग में या ड्रग डेवलपमेंट में दो डिसिप्लिन आते हैं, एक कीमो इन्फॉर्मेटिक्स और एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स। कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में हम डील करते हैं लार्ज डेटाबेसेस, बहुत सारी ऐसी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जैसा कि जिंक डेटाबेस है, पबकेम डेटाबेस है, ऑक्सफोर्ड डेटाबेस है, और बहुत सारी इस तरह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डेटाबेसेस हैं, और MP3D डेटाबेस है। तो हम इन डेटाबेसेस को यूटिलाइज करके इनके 3D मॉलिक्यूल लेकर किसी टारगेट के अगेंस्ट स्क्रीन कर सकते हैं, या हम खुद भी डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं केमिकल्स की या फाइटोकेमिकल्स की। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या उनकी डेटाबेसेस आती हैं, जैसा कि प्रोटीन डाटा बैंक, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोटीन टारगेट नहीं हो सकती। तो उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि डाटा माइन करते हैं कि कौन सी प्रोटीन को एज ए टारगेट किया जा सकता है। व्हाट इज कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग? कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, these are computer aided drug designing is mathematical approximation and computer program to calculate the properties of the drug, of the future drug. This is called computer aided drug designing. कौन कौन से टूल और जो यूज होते हैं, इसमें हम कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंस करते हैं टू आइडेंटिफाई टारगेट। आई विल गिव वन एग्जांपल अबाउट दैट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। होमोलॉजी मॉडलिंग करते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन या एक्टिव साइट प्रेडिक्शन। सिस्टम बायोलॉजी यूज होती है टू आइडेंटिफाई टारगेट्स। डेटाबेसेस यूज होती हैं, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो टूल्स हम यूटिलाइज करते हैं इन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग। तो सबसे पहले तो हम कोई भी प्रोटीन जिसका हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, हम पीडीबी पे जाके चेक करते हैं इट्स स्ट्रक्चर इज अवेलेबल और नॉट। एक्स-ray crystallography and NMR structure is available or not. If not available, then we predict the structure through uh, bioinformatics tools such as homology modeling, ab initio modeling, or threading. Then फिर हम केमिकल लाइब्रेरी देखते हैं कि हमने कौन सी यूज करनी है। यहाँ प्रोटीन टू प्रोटीन डॉकिंग भी कर सकते हैं या प्रोटीन टू लिगैंड डॉकिंग भी कर सकते हैं। इन सिलिको मेथड्स इन ड्रग डिस्कवरी, कौन कौन से इन सिलिको मेथड्स हैं जो ड्रग डिस्कवरी में यूज होते हैं? मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, वर्चुअल हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, फार्माकोफॉर मॉडलिंग है, फ्रैगमेंट बेस्ड स्क्रीनिंग है, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एंड सिमुलेशन है। तो ये सारी चीजें जो इन सिलिको मेथड्स हैं जो कि ड्रग डिस्कवरी में यूज होते हैं। आज के लेक्चर में मैं बेसिकली हाईलाइट करूंगा मॉलिक्यूलर डॉकिंग पे। जो मेरा फोकस होगा जो लेक्चर का, वो इसी के गिर्द होगा। व्हाट इज डॉकिंग? Docking is the identification of low energy binding modes when one molecule like ligand is bind to the macromolecule like receptor is called docking. तो इसमें ये किस पे बेस करती है? स्कोरिंग फंक्शन पे बेस करती है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स पे बेस करती, यानी कि एल्गोरिथम वगैरह। दो किस्म की डॉकिंग है, प्रोटीन टू लिगैंड डॉकिंग, प्रोटीन टू प्रोटीन डॉकिंग। प्रोटीन टू लिगैंड डॉकिंग, ligand is flexible but receptor protein is rigid. Interaction produces conformational changes in the ligand, and this is called protein to ligand docking. Protein to protein docking, both molecules are rigid. Interaction produces no changes in the conformation, just like key and lock model. डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोटीन टू प्रोटीन डॉकिंग में
जैसा कि आपको ये पिक्चर में शो है, दिस इज वन प्रोटीन, दिस इज द सेकंड प्रोटीन। व्हेन वी डॉक दे ये डॉक हो जाते हैं जस्ट लाइक की एंड लॉक मॉडल, जैसे की एंड लॉक मॉडल में होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन टू प्रोटीन डॉकिंग। Protein to ligand docking, we select a protein, identified the active site या binding site of the protein, and dock ligand to the active site of the protein. Then conformational changes takes place. This is called protein to ligand docking. Example, आपके सामने है, ये प्रोटीन है, and this is the active sites या pockets जिसको हम कहते हैं। जो एक्टिव पॉकेट है उसको सिलेक्ट करते हैं, देन लाइगेंड को डॉक करते हैं इस एक्टिव पॉकेट के साथ, ताकि वो हम उसको इनहिबिट कर सकें या एगोनिस्ट कर सकें। कौन कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम यूज होते हैं, मैंने जस्ट कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो हैं बेसिक वो ऐड किए हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम यूज होते हैं फॉर डॉकिंग पर्पसेस। एमओई डॉक, फ्लेक्सएक्स, गोल्ड, ऑटोडॉक, फ्रेड, हैमरहेड, फ्लॉग, ऑटोडॉक वीना. These are some programs which is used for docking. I will give the examples कुछ मैंने इस लेक्चर में ऐड की हैं डॉकिंग के लिए, क्योंकि आई एम वायरोलॉजिस्ट, तो इसलिए मैंने एक कुछ वायरोलॉजी की जो एग्जांपल्स ऐड की हैं जिसमें हमने डॉकिंग की है और उसके अगेंस्ट और लैब एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए हैं और उसको पब्लिश किया। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा हेपेटाइटिस सी वायरस की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने के बाद मैं इसका फिर आपको बताऊंगा कि हमने किस प्रोटीन को सिलेक्ट किया और उसकी बेसिस क्या थी, और प्रोटीन टू प्रोटीन डॉकिंग की। HCV causes acute and chronic hepatitis, which can eventually lead to permanent liver damage, hepatocellular carcinoma, and death. Currently, 270 million people worldwide are infected with hepatitis C virus, and in Pakistan, around about 10 million people are infected with hepatitis C virus. Genetically highly variable. कोई इसकी वैक्सीन अब तक इसलिए नहीं है क्योंकि ये जेनेटिकली हाईली वेरिएबल है। टिल नाउ more than 11 subtype 11 genotype and more than 100 subtypes of hepatitis C virus. This is due to lack of proofreading activity of RNA dependent RNA polymerase, and due to high replication activity of the hepatitis C virus. Pakistan most prevalent genotype is 3A, and in the world 1A is most prevalent genotype, which is different in different part of the world. In China, 2A is most prevalent genotype. In Egypt, 6A is most prevalent genotype. Now, treatment of standard of HCV is the interferon, ribavirin, tiloprevir, pociprevir, along with some NS5B inhibitors. These are the structure of hepatitis C virus, which consists of three structural and seven non-structural protein. Three structural is core protein, which involved in carcinogenesis, envelope protein 1 and envelope protein 2. I focus on these protein because we work on it. Envelope protein 1 is both are glycoprotein which involved in the entry of the virus into these cells. If we block these proteins, we can block virus entry into these cells. Hepatitis C virus envelope protein 1 contain glycosylation sites, and these glycosylation and envelope protein 1 consists of 7 glycosylation sites, and envelope protein 2 consists of uh, 11 glycosylation sites. These glycosylation sites play an important role in viral entry. If we block these glycosylation sites,
we can block the entry of the hepatitis C virus. Other protein like NS5B is important as a RNA dependent RNA plays and have role in and replication. I focus on the in this paper. We firstly produce HCV pseudoparticles. Uh, we produce HCV pseudoparticles by transfecting three vector HCV envelope protein and envelope protein 2, GAG-POL, and luciferase. And these pseudoparticles are produced in 293 T cells. And we also performed lab work on it. And uh, uh, Galanthus novellus agglutinin is a antiviral agent. We identify Galanthus novellus agglutinin is a protein which is called lectins. These are in और ये concept इसका ये है कि Galanthus novellus agglutinin, these are carbohydrate binding protein which bind to the glycosylation sites and possibly block the entry of hepatitis C virus and HIV virus or other viruses which contains glycosylation site. And then we perform protein to protein interaction in the lab and find that GNA find that uh, DNA bind to the glycosylation sites of hepatitis C virus and block the entry of the hepatitis C virus into the cells. This mechanism was reported was reported uh, in journal virology journal. Similarly, I will give one example of a dengue virus. Dengue virus also a RNA viruses which cause dengue shock syndrome or hemorrhagic fever. Uh, इसमें हमने इस प्रोजेक्ट में डेंगी NS3 ग्लोबल कंसेंसस सीक्वेंस एनालिसिस की है फॉर एंटीवायरल ड्रग डेवलपमेंट। वायरसेस में जो मेन इशू है कि इसमें वेरिएशन होती हैं, जैसे कि डेंगी है, डेंगी वायरस में 5 सीरोटाइप्स रिपोर्टेड हो चुकी हैं। तो इट डिफिकल्ट टू डेवलप ड्रग बिकॉज वन सीक्वेंस सकते हैं। इस केस में हमने क्या किया कि ग्लोबल कंसेंसस सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया। ग्लोबल कंसेंसस सीक्वेंस किस तरह आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले हमने प्रोटीन सीक्वेंस मसलन इसकी 5 सीरोटाइप्स हैं, हर सीरोटाइप के 200 या 300 सीक्वेंस रिट्राइव किए फ्रॉम द एनसीबीआई। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की, देन कंसेंसस सीक्वेंस आइडेंटिफाई किए और फिर ग्लोबल कंसेंसस सीक्वेंस एंड देन आइडेंटिफाइड कंजर्व्ड पेप्टाइड और उन पेप्टाइड का फंक्शन आइडेंटिफाई किया और उनको रिपोर्ट किया कि अगर हम इस जगह से टारगेट करें तो हम डेंगू वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट एक डायग्राम ऐड की है कि डेंगू की 4 सीरोटाइप्स उस वक्त तक रिपोर्टेड थी। तो हमने क्या किया कि कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ सीरोटाइप 1 आइडेंटिफाई किया। मसलन 200 सीक्वेंस या 300 सीक्वेंस से ये एक कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ सीरोटाइप 1 बनाया। सेम कंसेंसस सीक्वेंस 2 और कंसेंसस सीक्वेंस 3 सीरोटाइप का, कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ 4 सीरोटाइप का। देन हमने चेक किया कि कौन-कौन से रीजन हैं जो कंजर्व्ड हैं। फॉर एग्जांपल दिस रीजन इज कंजर्व्ड, जैसे कि ये नजर आ रहा है, और ये रीजन कंजर्व्ड है। देन हमने कंजर्व्ड रीजन जो इससे उठाए और उसको फर्दर चेक किया कि इनका फंक्शन क्या है। तो ये 55 से 66 एंड जो भी ये रीजन्स हैं या ये पेप्टाइड हैं, ये कंजर्व्ड हैं इन ऑल सीरोटाइप्स और आगे हमने उसका आइडेंटिफाई किया कि इनका फंक्शन क्या है। तो अगर हम इसको टारगेट करें इन सीक्वेंस को तो हम इसके लिए एक अच्छी ड्रग बना सकते हैं। यानी कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई न्यू टारगेट्स। तो हम इस तरह जितनी भी वायरल डिजीजेस हैं या जो भी वेरिएबल जैसा सार्स कोरोना वायरस 2 है, अब उसके डिफरेंट वेरिएंट रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें हम न्यू टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पेपर हमने
ये जो एक डायग्राम अब मैंने शो की है, ये हमने साइंटिफिक रिपोर्ट नेचर में पब्लिश किया। इसमें हमने पेन सीरोटाइप इनहिबिटर फाइंड आउट किए अबाउट थ्रू मॉलिक्यूलर डॉकिंग अप्रोच के थ्रू, अबाउट ये जो 3 केमिकल्स हैं, ये ऑल सीरोटाइप्स को इनहिबिट करते हैं और मल्टीपल साइट्स पे जाके बाइंड करते हैं। जैसे कि कैंथीन 619 और बीटा ग्लूकोपाइरानोसाइड, कॉशिनॉल डब्ल्यू और कॉशिनॉल के, ये ऐसी भी जो डेंगू की NH3 है, NH3 प्रोटीन, ये प्रोटीएज प्रोटीन है जो डेंगू वायरस की। इसका काम ये होता है कि ये जो 10 जीन्स हैं डेंगू वायरस की, उसको क्लीव करता है विद द होस्ट प्रोटीन के साथ इनटू 10 प्रोटीन। टोटल पूरी प्रोटीन को 10 प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो डेंगू की रेप्लिकेशन ब्लॉक हो सकती है। तो इसमें 3 साइट्स हमें पहले ही पता है जो रिपोर्टेड हैं, एस्पैराजीन, हिस्टिडीन और सीरीन। इनको हम कैटालाइटिक ट्रायड कहते हैं। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें थ्रू केमिकल्स या फिर एफडीए अप्रूव्ड कोई ड्रग्स या किसी से भी, तो हम डेंगू की रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो 3 आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमने 12,000 या 16,000 की लाइब्रेरी फाइटोकेमिकल की स्क्रीन करके ये 3 आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि NH3 प्रोटीएज ऑल सीरोटाइप के ऊपर बाइंड करते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं। सेम एक और स्टडी जो कि हमने HIV के अगेंस्ट की, जिसमें हमने इन विट्रो प्लस इन सिलिको दोनों टेक्निक आइडेंटिफाई की। मैं इन शॉर्ट करता हूँ क्योंकि टाइम 2 मिनट्स रह गए। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किए ये 3 सिंथेटिक केमिकल्स। इस केस में हमने कोलैबोरेशन की विद द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने ये केमिकल सिंथेसाइज किए अपनी लैब में, और फिर हमने इसकी इन विट्रो टेस्टिंग की अगेंस्ट HIV, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड देन मैकेनिज्म फाइंड आउट किया कि ये जो केमिकल्स हैं, ये इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के साथ और उसको इनहिबिट करते हैं। और AZT एज ए जो इसकी स्टैंडर्ड ड्रग है, उसको एज ए कंट्रोल यूज किया। ये पेपर पब्लिश हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री रिसर्च में किया। सिमिलरली अनदर स्टडी जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि 3 मोर जो कि HIV इनहिबिटर्स हैं अगेंस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। तो ये पेपर हमने बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री लेटर्स में पब्लिश किया अबाउट स्ट्रक्चर। दिस इज अनदर स्टडी जो कि एंटी एस्ट्रोजेनिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट्स कैंडी मेटाबोलाइट टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर डिजीज। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया ऐसे फाइटोकेमिकल जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और उसको इनहिबिट करते हैं। दिस पेपर पब्लिश्ड इन बांग्लादेश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके अलावा हम डेटाबेसेस बना सकते हैं, मसलन प्लांट्स की, जिससे हमने एक ये मैप्स और MP3 डेटाबेस के नाम पे 2 पब्लिश की हुई हैं। तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को यूज करते हुए डेटाबेसेस बना सकते हैं और ये डेटाबेसेस आगे फर्दर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट में यूज हो सकती हैं। तो ये 2 डेटाबेसेस हमने ये द डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में बनाई है। मैप्स, ये जो मैप डेटाबेस है, इसमें ये सारी जो इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज, फाइटोकेमिकल कौन-कौन से हैं एक प्लांट में, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके 3D स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं और लिटरेचर भी बताया हुआ है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में रिपोर्ट हुआ हुआ है। तो उसके बाद हमने लेटर स्टेजेस पे MP3 डेटाबेसेस पब्लिश की, जिसमें तकरीबन 10,000 के करीब फाइटोकेमिकल्स के स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब हम उसको 20,000 तक लेके जा चुके हैं और 5,000 या 2,000 हमने फ्रीली डाउनलोडेबल, आप इसकी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन, लिटरेचर रेफरेंसेस, फाइटोकेमिकल रिकॉर्ड, टारगेट्स, एक्टिविटीज, फाइटोकेमिकल स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स और कॉस्ट इसकी फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है। अपडेट हम वीकली बेसिस पे करते हैं, तो ये अवेलेबल है। यू कैन एक्सेस दिस